شاہین ٹی وی کے معزز دوستوں السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، آج ڈاکٹر ذاکر نائک کا فیصل آباد جامعہ سلیفہ میں پہلا خطاب تھا، جس میں انہوں نے بہت سی اہم باتیں کی، وہ باتیں جو کہ ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ آئیے ڈاکٹر ذاکر نائک کی گفتگو سنیں، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، معزز مہمان ہمارے تشریف لائے، ہم اپنی طرف سے اساتذہ، طلبہ اور انتظامیہ کی طرف سے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ وقت نکالا ہے۔ گزارش صرف اتنی ہے، چونکہ وقت بہت کم ہے اور ان کے پاس صرف 10 منٹ ہیں، لہذا آپ ان کی گفتگو سماعت فرمائیں۔ میں نہایت ادب سے ان سے گزارش کرتا ہوں، حجت الاسلام جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ بھائی انتہائی قلیل وقت ہے، ہم جتنے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ آئے ہیں ہمیں ان کے وقت کا احساس ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ انتہائی مختصر ڈاکٹر ذاکر صاحب آپ کو نصیحت فرمائیں گے اور آگے بہت پروگرام ہے، خاموش ہو کے بیٹھ جائیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں محترم جناب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے محترم مشائخ، میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرے پاکستان کا دورہ جو 3 ہفتے سے ماشاءاللہ شروع ہوا، آج میں فیصل آباد میں ہوں اور فیصل آباد کے بارے میں کافی سنا تھا، آج دیکھ بھی لیا الحمدللہ، اور مجھے خوشی ہے کہ میں جامعہ سلفیہ میں موجود ہوں۔ خواہش تھی کہ اور وقت گزاروں، لیکن مصروفیات کی وجہ سے میں نے کہا میں آدھا گھنٹہ ہوں گا۔ اور ایک چیز ہمیشہ سمجھیے کہ لوگ آج کے معاشرے میں نے جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ میں نے چنا تھا ڈاکٹر بننے کے لیے، کیونکہ میں سمجھتا تھا، میری سوچ تھی کہ ڈاکٹر سب سے اچھا بہترین پیشہ ہے، انسانوں کی جو بیماریاں دور کرتا ہے، انسانوں کی جان بچاتا ہے۔ تو میرے والد بھی ڈاکٹر تھے، طبیب تھے، میرے بڑے بھائی بھی تھے، اسی لیے میں نے پیشہ چنا۔ بٹ جب شیخ احمد دیدار صاحب سے ملاقات کی تو ان نے مجھے ڈاکٹر آف باڈی سے ڈاکٹر آف سول بنایا، ایک طبیب سے ایک روحانی ڈاکٹر بنایا۔ اور میں نے اس تقریر کے پہلے ایک آیت کی تلاوت کی جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں، سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین۔ کون بہترین شخص ہے؟ وہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں۔ سب سے دعویٰ کرنا ہر مسلمان میں کہ آپ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے فل ٹائم داعی سے، جیسے فل ٹائم ڈاکٹرز ہے، فل ٹائم انجینئرز ہے، فل ٹائم لائرز ہے۔ ہمارے پاس کتنے فل ٹائم داعیز ہے جو صرف دعوت کا کام کر رہے، غیر مسلمانوں کو اسلام کی طرف بلاتے ہیں، اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں۔ تو یہ پیشہ داعی کا سب سے بہترین پیشہ ہے اور اس سے بہتر پیشہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو جامعہ سلفیہ میں الحمدللہ مجھے خوشی ہے کہ میں آیا، آپ کی لائبریری دیکھا کہ ماشاءاللہ علم کا ذخیرہ آپ کے پاس ہے، اور امید ہے کہ مجھے اس جامعہ سلفیہ سے کئی داعی نکلیں گے، اور یہ دنیائی لوگ جو سمجھتے پیسے کے پیچھے بھاگنا، میرے حساب سے وہ بہت
मैं कहूँगा कि वो तिजारत में बहुत कमज़ोर है, क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि 2 रकात सुन्नत फजर के पहले वो इस दुनिया और दुनिया की दौलत से ज़्यादा है। तो मुसलमान अगर 2 रकात सुन्नत फ़र्ज नया सुन्नत पढ़ेंगे तो बिल गेट्स और जेफ बेज़ोस से ज़्यादा अमीर होंगे। मेन दौलत आखिरत की है। अल्लाह ताला फरमाते अगर आप दुनिया चाहेंगे दुनिया देंगे लेकिन आखिरत नहीं देंगे, अगर आप आखिरत चाहेंगे अल्लाह आखिरत भी देगा दुनिया भी देगा। तो इसीलिए हमें फोकस करना चाहिए आखिरत पे और अल्लाह के पैगाम पे। और इसके एक आयत पहले अल्लाह ताला फरमाते सूरह इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 103 में वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीअन वला तफरकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़िए और आपस में मत बंटो। अल्लाह की रस्सी कुरान और सही हदीस। हम मुसलमानों को कुरान और सही हदीस पे अमल करना चाहिए, उसके ऊपर उसको मजबूती से पकड़ना चाहिए और आपस में नहीं बंटना चाहिए, आपस में तफरक नहीं होना चाहिए। अफसोस की बात है कि आज मुसलमान आपस में झगड़ा करते छोटी छोटी बात पे। हमें तहकीक करना चाहिए, हमारे तहकीक पे अटल रहना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हम आपस में झगड़ा करें। और जितने झगड़े हैं वो अफजलियत के ऊपर है, हराम हलाल पे नहीं है। तो मैं कहता हूँ, अक्सर मुसलमान कहते हैं मैं ही सही हूँ, मैं कहता हूँ मैं भी सही हूँ। तो ये अगर ही और भी का समझ आप फर्क मालूम पड़े तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। सारी झगड़े में अक्सर झगड़े। और अगर हर मुसलमान दावत देगा अल्लाह की किताब की तरफ और अल्लाह के रसूल की सही हदीस की तरफ, तो अक्सर झगड़े मिट जाएंगे। अक्सर मुसलमान अपनी शख्सियत की तरफ दावत देते, इदारे की तरफ दावत देते, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ दावत दो। और जो आयत की मैं तिलावत की, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दअा इलल्लाहि व अमिला सालिहन व क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो कि मैं मुस्लिम हूँ। तो हर मुसलमान अगर इसके ऊपर डट के रहे मैं मुस्लिम हूँ, तो जितने ये अक्सर फ़िरके हैं ये मिट जाएंगे। अगर कोई मदीना से फारग अपने आप को मदनी कहता है, मुझे कोई एतराज़ नहीं। कोई नदवा से फारग है, नदवी कहता है। देवबंद से फारग है, देवबंदी कहता है। ये निस्बत से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब मज़हब का सवाल है, जहाँ दीन का सवाल है, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते क़ौला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कहो क्या मुस्लिम है। अगर ये सारे मुसलमान समझ जाएंगे और मुसलमान एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम फिर से दुनिया की चोटी पे होंगे। आज की तारीख में मुसलमान को फुटबॉल की तरह लात मारा जाता है, सब जगह मुसलमान को नीचा देखा जाता है और मुसलमान के साथ जो सलूक किया जाता है। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि एक वक्त आएगा जो मुसलमान पे टूट पड़ेंगे। तो साहबा पूछते क्या मुसलमान अक़लियत में रहेंगे, कम रहेंगे? तो अल्लाह के रसूल फरमाते नहीं, वो तादाद में बहुत ज़्यादा रहेंगे लेकिन झाग की तरह, लाइक फ्रॉथ। आज जब मुसलमान 2 बिलियन है, 25% से ज़्यादा है। दुनिया में कभी भी इतनी तादाद मुसलमानों की नहीं थी, इतना फीसद था ही नहीं। फिर भी लोग हमें नीचा देखते, हमें फुटबॉल की तरह लात मार रहे। 8वीं और 9वीं सदी में मुसलमान टॉप पे थे क्योंकि हम कुरान और हदीस के करीब थे। आज हम कुरान और हदीस से दूर हो गए, इसलिए ये हमारी हालत है। इंशाअल्लाह हम कुरान और हदीस पे फिर से अमल करने लगेंगे तो इंशाअल्लाह मुसलमान फिर से दुनिया की चोटी पे रहेंगे। इसके साथ मैं मेरी छोटी सी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी साथिया, डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में आते ही सबसे पहले वही लोगों के लिए पैगाम था जो हमेशा से वो देते हैं, जिसको हमेशा से वो तरजीह देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा है कि अल्लाह की रज़ी को मजबूती से तामे रखो और फिरकों में मत बटो। तो डॉक्टर जाकिर साहब इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि जो भी मुसलमान है इनको चाहिए कि वो फिरकों में मत बटे, दुश्मनियां मत मोहले आपस में, बल्कि वो यूनिटी के साथ जो यहूद व नसारा है या गैर मुल्की ताकतें हैं इनका डट कर मुकाबला करें। क्योंकि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जो बड़ी बड़ी गैर मुस्लिम ताकतें हैं इनको यही एज है, यही इनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, यही एज हासिल है कि मुसलमान इस वक्त जो के बहुत ज्यादा पटे हुए हैं तो मुसलमानों को मजीद और डिवाइड करते हैं और डिवाइड कर करके फिर रोल करते हैं। यानी इनकी एक पॉलिसी है डिवाइड एंड रोल,
यानी कि वो मुसलमानों को डिवाइड करेंगे। मुसलमान चूंकि डिवाइडेड हैं, यूनिटी नहीं है, तो हम अब मुसलमानों पे जुल्म और सितम करेंगे। मुसलमानों पे अब जितना मर्जी हम तशद्दुद करें, इनके हुकूक सलब करें, हम इन पे काबिज हो जाएं। क्योंकि मुसलमान अब डिवाइडेड है, तो हम मुसलमानों को आपस में किसी को डिफेंड नहीं करेंगे। मुसलमान इकट्ठे होकर खुद के डिफेंस में कभी भी हमारे सामने आंखें हमें नहीं दिखाएंगे। हमारे सामने वो आंखें भी झुकाए रखेंगे, सर भी झुकाए रखेंगे कि एक ताकतवर मुल्क है। तो डॉक्टर साहिब का कहना है कि इस वक्त मुसलमान दुनिया की तारीख में इस वक्त सबसे ज्यादा है। 25% पूरी दुनिया पे मुसलमान है, लेकिन हम जाग की तरह है कि हमें कोई भी कुचल देता है, कोई भी किसी तरह फेंक देता है, कोई भी कुछ भी हम पे जुल्म और सितम करता है, लेकिन हम बोलने के काबिल नहीं है। इसकी वजह यह है कि मुसलमान बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। अब पाकिस्तान को ही देख ले, यहाँ पे कितने फिरके हैं और हर फिरका एक दूसरे की जान का दुश्मन बना है। छोटी छोटी बातों पे छोटे छोटे इख्तिलाफात की वजह से हम अलग फिरके बनाकर बैठ जाते हैं और एक दूसरे के साथ हम गुत्तम गुत्ती हो जाते हैं, दुश्मन पाल लेते हैं। हालांकि डॉक्टर साहब का कहना है कि भाई कोई कहता है कि मैं देवबंदी हूँ, कोई बरेलवी हूँ, कोई कहता है मैं मदनी हूँ, तो कोई कुछ कहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम से कम कुरान और हदीस पे अमल करो। ना कि आप ये कहो कि भाई मेरा बाबा ये कहता है, भाई मेरा फला वो कहता है, मैं तो फला इल्म को सुनता हूँ, मैं तो इसकी बात मानूंगा। तो डॉक्टर साहब ये नहीं कहते कि आप मेरी बात मानो, आप वो बात मानो जो कुरान और हदीस कहता है, जो अल्लाह तबारक व तआला उसके रसूल ने कहा, जो हुक्म दिया उसको सिर्फ मान लो। आप इसके अलावा अपने आप को जो मर्जी कहो, लेकिन आप कहो चूंकि मैं अल्लाह और इसके रसूल की बात को मानता हूँ, उन्होंने जो हमें शरीयत दी मैं उसको फॉलो करता हूँ और मैं मुसलमान हूँ। नाज़रीन गिरामी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।